السلام علیکم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں موجود ہوں پی آئی اے پلانیٹوریم پر، اور اس وقت آپ کی جو میرے سامنے دیکھ رہے ہیں پی آئی اے پلانیٹوریم کا ہال ہے، جہاں پر میں آپ کو اندر لے کر جاؤں گا۔ اندر آپ کو بہترین سا ویڈیو ایک دکھائیں گے، اور یہ میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی آئی اے کا جہاز موجود ہے، اور پی آئی اے کے جہاز کا بھی کوشش کریں گے اندر سے وزٹ کروائیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے سے اورنج لائن ٹرین گزری ہے، اورنج لائن ٹرین کا خوبصورت سا ویو، جو کہ یہاں سے اب نیچے ٹیوب اسٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے، جو کہ اندر ہے واقع یعنی زیر زمین چلا جاتا ہے۔ تو چلیں چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں اور شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ انہوں نے آسمان کے مختلف حصوں میں نمایاں اور روشن ستاروں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں کوئی یہ ایک نیلا ستارہ یعنی بلو سٹار ہے۔ یہ ستارہ اپنے جوزا یعنی بیٹل جیوس ہے۔ یہ ایک سرخ ستارہ یعنی ریڈ جوائنٹ ہے۔ سرخ ستارہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جس کا حجم اصل حجم سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایک سفید ہونے یعنی وائٹ ڈارک میں بدل جاتا ہے۔ اس کا حجم اصل حجم سے تقریباً 100 گنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ نیوٹران ستارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی کثافت یعنی ڈینسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک چمچہ مادے کا وزن ہزاروں ٹن کے برابر ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بلیک ہول کی انتہائی کشش سفر یعنی گریوٹی کی وجہ سے یہ روشنی کو بھی جذب کر لیتا ہے، اس لیے بلیک ہول کسی دوربین سے بھی نظر نہیں آتا۔ ان کا سراغ ریڈیائی دوربینوں یعنی ریڈیو ٹیلیسکوپس کی مدد سے ملا۔ ستارے کو یہ تمام مراحل طے کرنے میں کوئی 12 سے 15 بلین سال کا عرصہ لگتا ہے۔ ہمارا سورج بھی انہی مراحل سے گزر رہا ہے، اور تقریباً 4 بلین سال بعد اس کا حجم تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گا۔ سورج کہکشاں میں تنہا ہی محوی سفر نہیں، یہ اپنے 9 سیاروں، ان کے 97 چاندوں، بے شمار سیارچوں اور لاتعداد دمدار ستاروں پر مشتمل خاندان، جسے ہم نظام شمسی یا سولر سسٹم کہتے ہیں، کہ ہمراہ کہکشاں یعنی ملکی وے میں اس کے مرکز کے گرد گردش کر رہا ہے، اور اپنا ایک چکر 20 کروڑ سال میں مکمل کرتا ہے، جبکہ اس کائنات میں 100 ارب کہکشائیں یعنی گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ سب کہکشائیں اس کائنات میں گردش کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جو گھوم رہا ہے۔ کائنات کی وسعت کا اندازہ 15 سے 20 ارب میلی سال یعنی لائٹ ایئر لگایا گیا ہے، یعنی روشنی کو اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے 15 سے 20 ارب سال کا وقت گرد اپنے اپنے مداروں میں اس کے گرد گردش میں مصروف ہے۔ سورج سے نزدیک ترین سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر 88 دن میں مکمل کرتا ہے۔ یونانیوں نے اسے سورج کے پیغام رساں کے طور پر جانا۔ سورج سے اس کا اوسط فاصلہ 58 ملین کلومیٹر ہے، لیکن یہ فاصلہ 46 اور 70 ملین کلومیٹر کے درمیان بدلتا ہے۔ اگرچہ عطارد نہایت چمکدار سیارہ ہے، لیکن سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت سورج کی روشنی کے باعث مدھم سا نظر آتا ہے۔ یہ ایک نہایت گرم سیارہ ہے۔ دن میں درجہ حرارت 800 درجے فارنہائٹ ہو جاتا ہے، جبکہ رات کو -300 درجے فارنہائٹ تک گر جاتا ہے۔ عطارد کا کوئی چاند نہیں۔ یہ سیارہ زہرہ یا وینس ہے، چاند کے بعد رات میں سب سے زیادہ روشن، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے حسن و محبت کی دیوی سے منسوب۔ اس کے گرد بادلوں کی گہری تہہ کی وجہ سے اس کی سطح کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکی، حالانکہ یہ زمین کا قریب ترین سیارہ ہے۔ لیکن 1962 میں ایک خلائی جہاز نے سیارے سے صرف 35,000 کلومیٹر دور سے گزرتے ہوئے اس کے متعلق زمین پر معلومات پہنچائی۔ سیارہ زہرہ کا ایک دن ہمارے 243 دن کے برابر ہے، اور یہ سورج کے گرد ایک چکر 225 دن میں پورا کرتا ہے۔ یوں سیارہ زہرہ کے تمام موسم اس کے ایک ہی دن کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔
दूसरी अजीब तर बात यह है कि ये अपने महवर पर जमीन के लिहाज से मुखालिफ समत में घूमता है, यानी यहाँ सूरज मगरिब से तलू और मशरिक में गुरूब होता है। यहाँ गंधक के तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, लेकिन ये सतह तक नहीं पहुँचती। अतारत की तरह ज़ोरा का भी कोई चांद नहीं है। ये हमारी जमीन है, जिसे हम सब सैयारों से बेहतर जानते हैं। इसका जिक्र हम वापस पहुंचकर करेंगे। इसके आगे सैयारा मरीख यानी मार्स से। रोमियो ने इसके सूखी माइल रंग की मुनासिबत से इसे जंग के देवता का नाम दे दिया। मार्च का महीना और मंगल यानी ट्यूसडे इसी सैयारे से मुनासिबत रखते हैं। शुरू ही से ये सैयारा अहले जमीन के लिए तवज्जो का मरकज रहा है, क्योंकि इनके ख्याल में मरीख पर भी जिंदगी का वजूद था। इस ख्याल को तकवीत इस तरह मिली कि 1890 में दूरबीन से मुशाहिदा करने पर इस सैयारे की सतह पर कुछ लकीरें नजर आई। माहिरीन ने इन्हें पानी की नहरें समझा और ये नतीजा अखज किया कि वहां पर इंसान से भी ज्यादा ज़हीन लोग आबाद हैं। लेकिन 1965 में अमेरिकी खिलाई जहाज मैरीनर 4 मरीख के करीब से गुजरा, सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर से। तो ये तमाम ख्यालात गलत साबित हो गए। अब तो मरीख पर 2 खिलाई गाड़ियां स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी भी उतारी जा चुकी हैं। मरीख की सतह पर रेत और हवा के जबरदस्त तूफान चलते रहते हैं। पहली नजर में मरीख जमीन के मुशाबे मालूम होता है। ये वाहिद सैयारा है जिसकी सतह हम देख सकते हैं। यहाँ कुतबैन पर बर्फ है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। ऑक्सीजन इस कदर कम कि इंसान इस फिजा में जिंदा नहीं रह सकता। ओजोन इतनी कम मिकदार में है कि ये मोहलिक अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने के लिए नाकाफी है। मरीख पर अगर जिंदगी किसी तौर पर मुमकिन है तो वो जरासीम की शक्ल ही में हो सकती है। जमीन पर जरासीम की नमूद और नशोनुमा करने में फितरत को सैकड़ों मिलियन साल लगे। मरीख की सतह की मिट्टी का तज्जिया करने पर कोई नामियाती मुरक्किबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिल सके जो जिंदगी का अवलीन पेशकर्मा होते हैं। मरीख का सतही रकबा भी जमीन की खुश्की के रकबे के बराबर है। सैयारा मरीख सूरज से 230 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ का एक साल 687 दिन का होता है। मरीख के 2 चांद भी हैं जो फोबोस और डीमोस कहलाते हैं, मगर ये हमारे चांद की तरह गोल नहीं। मरीख से आगे बढ़ते हुए हमें छोटे बड़े पत्थरों की एक पट्टी मिलती है। ये पत्थर जिन्हें सैयारचे यानी एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। माहिरीन फल्कियात के अंदाजे के मुताबिक ये सैयारचे दरअसल एक सैयारे के टुकड़े हैं जो सैयारों की बाहमी कशिश ज़हम यानी ग्रेविटी के बाइस टूट फूट गया। इन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए एक पट्टी की शक्ल इख्तियार कर ली। ये सैयारचे यानी एस्ट्रॉइड्स हमें खाली आंख से नजर नहीं आ सकते। एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 40,000 के लगभग है। ये अजीम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है, निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा। वजन में जमीन से 318 गुना ज्यादा, इतना बड़ा कि अगर निजाम शमसी के तमाम सैयारों इनके चांदों का मादा यकजा कर दिया जाए तो भी वो सिर्फ मुश्तरी के मुकाबले में आधा ही होगा। तारीक आसमान पर मुश्तरी अपनी चमक की वजह से बआसानी पहचाना जाता है। दूरबीन से देखने पर इंतहाई खूबसूरत नजर आता है, क्योंकि इस सैयारे को रंगीन बादलों ने घेरे में ले रखा है। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने इस सैयारे का मुशाहिदा करते हुए इसके 4 चांद दरियाफ्त किए जो इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही जैसे सैयारे सूरज के गिर्द। ये चांद गैलीलियन मून कहलाते हैं। सूरज से सैयारा मुश्तरी तकरीबन 780 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। सूरज के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 12 सालों में पूरा करता है, जबकि इसका एक दिन हमारे 10 घंटों के बराबर है।
गहरे बादलों की वजह से इसकी सतह नजर नहीं आती। मुश्तरी के कुल 63 चांद हैं। इसके एक चांद यूरोपा के नीचे माया के आसार में है। इससे अगला सैयारा ज़ोहर यानी सैटर्न है, जो अपने हल्के यानी रिंग की वजह से फौरन पहचाना जाता है। ज़ोहर कई लिहाज से मुश्तरी का छोटा नमूना साबित हुआ। इसके गिर्द भी बादलों की तह है, जिनकी वजह से इसकी सतह भी पोशीदा रहती है। यहाँ भी तूफानों के चक्कर चलते रहते हैं, जिनकी रफ्तार तकरीबन 1700 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये सूरज से 1430 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 29.5 साल में पूरा करता है। कुछ अरसे पहले तक माहिरीन का ख्याल था कि इसके 10 चांद हैं, लेकिन जदीद खलाई तहकीक से अब तक 23 चांद दरियाफ्त हो चुकी है। इसके आगे यूरेनस और नेपच्यून हैं, जो बहुत दूर हैं। यूरेनस सैयारा ज़ोहर के मुकाबले में सूरज से दुगना दूर है, यानी 2870 मिलियन किलोमीटर। इतना फासला तय करने में रोशनी को तकरीबन 3.25 घंटे का वक्त लगता है, जबकि नेपच्यून तक 4 घंटे। निहायत ताकतवर जमीनी दूरबीनों और साफ फिजा की मौजूदगी के बावजूद ये सैयारे मध्यम सब्जी माइल नीले नुक्ते से नजर आते हैं। यूरेनस का एक साल हमारे 84 साल के बराबर है, जबकि नेपच्यून सूरज के गिर्द एक चक्कर 165 सालों में पूरा करता है। यूरेनस के 5 और नेपच्यून के 2 चांद दरियाफ्त हो चुके हैं। और आखिर में सियारा प्लूटो है, सूरज से 5900 मिलियन किलोमीटर दूर। प्लूटो का एक साल हमारे 248 सालों के बराबर है। प्लूटो का एक चांद भी है, जो इससे बहुत करीब यानी सिर्फ 17,000 किलोमीटर दूरी पर गर्दिश करता है। ये अपनी गर्दिश 6 दिन और 9.5 घंटों में पूरी कर लेता है। प्लूटो के चांद का इस कदर करीब होना एक इंतहाई हैरानकुन बात है। यही वजह है कि माहिरीन फल्कियात के ख्याल से एक मजीद सैयारा भी होना चाहिए, जिसका मिकदार सूरज से 7 से 15 बिलियन किलोमीटर दूर हो। इस सैयारे को एक्स का फर्सी नाम दिया गया है। माहिरीन फल्कियात आजकल इसी को तलाश कर। इस एक साल के अरसे में जमीन पर कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी। मौसमों की तब्दीली की वजह सूरज से करीब या दूर होना नहीं, इसकी असल वजह ये है कि जमीन अपने महवर पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरह कभी एक कुतुब यानी पोल और कभी दूसरा कुतुब सूरज की तरफ एक हद तक झुकता है। खुद गर्मी होगी तो जुनूबी हिस्से में सर्दी। इस वक्त जमीन सूरज से दूर तरीन मकाम पर होती है, लेकिन सूरज की किरणें शुमाली निस्फ कुर्रा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कुतुब शुमाली का झुकाव सूरज की तरफ ज्यादा से ज्यादा होता है। यही वजह है कि शुमाली निस्फ कुर्रा में ये दिन लंबा तरीन गिना जाता है। इसके बरक्स यही दिन जनूबी निस्फ कुर्रा में मुख्तसर तरीन होता है, जबकि 21 दिसंबर को ये बात उलट हो जाती है। जमीन की गर्दिश के दौरान 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज ऐन ऊपर होता है। कतई इस्तवा वो फर्सी खत है जो कुर्रा जमीन को 2 बराबर हिस्सों यानी शुमाली निस्फ कुर्रा और जनूबी निस्फ कुर्रा में तकसीम करता है। तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। जिस तरफ नजर डालें हरियाली ही हरियाली होती है। 21 मार्च का दिन कई कौमों में खास अहमियत रखता है। मसलन कदीम ईरान में जश्न नौरोज इसी दिन मनाया जाता था और ये मौसम बहार के शुरू होने का ऐलान था। मौसम बहार 20 जून तक रहता है। 21 जून को सूरज मशरिक से 23.5 डिग्री शुमाल की जानिब से तुलू होता है और मगरिब से परे शुमाल ही की जानिब गरूब होता है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, ये साल का लंबा तरीन दिन होता है। इसके बाद
सूरज मशरिक की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है और 23 सितंबर को एक बार फिर खते इस्तवा को अबूर करते हुए जनूबी निस्फ कुर्रा में दाखिल होता है। इस दिन भी दिन और रात बराबर होती है और यहीं से मौसम खज़ा का आगाज होता है। 21 दिसंबर को सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए जमीन ऐसे मकाम पर आ जाती है कि जब कुतुब जुनूबी का झुकाव ज्यादा से ज्यादा सूरज की तरफ हो जाता है। इस दिन शुमाली निस्फ कुर्रा में मुख्तसर तरीन दिन होता है तो जुनूबी निस्फ कुर्रा में लंबा तरीन। यहीं से मौसम सरमा का आगाज होता है जो 20 मार्च तक रहता है। हो सकता है कि आपके जहनों में ये ख्याल उभरे कि सर्दियां तो हमारे यहाँ फरवरी में ही खत्म हो जाती हैं, या ये कि गर्मी तो अप्रैल में ही आ जाती है। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सूरत मुख्तलिफ होती है, लेकिन मौसमों की तकसीम माहिरीन मौसमियात और फल्कियात के मुताबिक ये है। जमीन वैसे तो एक औसत दर्जे का सैयारा है, लेकिन इसकी 3 खुसूसियात ऐसी हैं जो किसी दूसरे सैयारे पर नहीं है। सबसे पहले ये कि इसके 3/4 रकबे पर पानी है। दूसरी खासियत ये है कि इसके बड़े आजम यानी खुश्की के अजीमुशान टुकड़े भी हरकत करते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। इस हरकत की वजह से जमीन की सतह में तब्दीलियां होती हैं, जलजले आते हैं और आतिशफिशा पहाड़ वजूद में आते हैं। तकरीबन 180 मिलियन साल पहले तमाम बर्रे आजम आपस में जुड़े हुए थे। 65 मिलियन साल पहले इंडिया बहरे हिंद में एक जजीरा था। शुमाल में एशिया की सरजमीन की तरफ सरकता सरकता वो एशिया की सरजमीन से आ मिला। जहाँ दोनों मिले वहाँ पर हिमालय पहाड़ों का सिलसिला नमूदार हुआ। ये जजीरा अब भी बर्रे आजम एशिया में धंसता जाता है, जो हिमालय पहाड़ों की ऊंचाई में तकरीबन 1 मिलीमीटर सालाना इजाफे का सबब है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की शरह तकरीबन 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर सालाना है। आज हमारी जमीन का नक्शा ऐसा है, लेकिन 10 लाख साल बाद दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा होगा। तीसरी और अहम तरीन खुसूसियत यहाँ जिंदगी का वजूद है। कोई 10 लाख साल पहले इंसान का वजूद हुआ। खालिक कायनात ने इसको तमाम मखलूक से मुनफरिद और अफजल करार दिया और जमीन के तमाम वसाइल इसके ताबे कर दिए कि इनको अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। खाने को तरह तरह के अनाज और फल पैदा किए। हो सकता है इस लामहदूद कायनात की किसी कहकशां के किसी सितारे के सैयारे हों और वहां जिंदगी भी हो, लेकिन इंसान अपनी तमाम तर तरक्की और इल्म के बावजूद अब तक उनका सुराग नहीं लगा सका। सिर्फ जमीन ही इस पूरी कायनात में ऐसा खित्ता है जहां जिंदगी अपनी बेहतरीन शक्ल में पाई जाती है।